Hello, good morning, students. How are you all? I hope that you have been following your work. So today, let us continue with the next part of your the topic sources of history and their classification. As I told you yesterday, we will be learning today literary sources. Now, the sources of history and their classification. How many types they have been classified? They are classified into two types, that is archaeological sources and literary sources. We have already covered the archaeological sources. Today we will be covering the literary sources. Now, what are literary sources? All the written records of past are known as the literary sources. Many of the available literary sources of Indian history of ancient India are manuscript. Before the invention of the paper, manuscripts were generally written on Bhojpatra, that is bark, birch, it's a bark, छाल होती है, and palm leaves जिस पे लिखा जाता था. The language of the manuscripts were generally in Prakrit and Sanskrit, and the script was ब्राह्मी which is no longer in use. So जितने भी written records होते थे उन्हें हम literary sources बोलते थे, और जो लिटरेरी सोर्सेस हमारे एंशियंट टाइम के जो लिटरेरी सोर्सेस अवेलेबल है वो मैन्युस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में है. और पेपर के इन्वेंशन से पहले सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स या तो पेड़ों की छाल पे लिखी जाती थी या फिर पाम लीव्स पे लिखी जाती थी, और इन मैन्युस्क्रिप्ट्स की लैंग्वेज यूजुअली प्राकृत या फिर संस्कृत हुआ करती थी. प्राकृत वाज अ लोकल लैंग्वेज होती थी, और संस्कृत एंड स्क्रिप्ट वाज ब्राह्मी which is no longer in use. Okay, so this is how literary sources were written. Now the literary sources are divided into two types. One is your regional religious literature, the other one is the secular literature. There are some indigenous sources also, one and the same. ओके, रिलीजियस लिटरेचर में जो इंडियन सोर्सेस हुआ करती थी दे आर कॉल्ड एज द रिलीजियस सोर्सेस, और सेक्युलर लिटरेचर वाज लाइक फॉरेन नो सेक्युलर इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी रिलीजन. इट इज मतलब कोई पर्टिकुलर धर्म से कोई कनेक्टेड नहीं थी. फॉरेन ट्रैवलर्स के जो रिकॉर्ड्स है वो दैट वेर इंक्लूडेड इन दी सेक्युलर लिटरेचर. सो लेट्स रीड अबाउट द रिलीजियस लिटरेचर. Writing on religious themes are called religious literature, like Vedas, the Ramayana, the Mahabharata, the Tripitakas, Puranas provide a wealth of knowledge about India's ancient past. So जो भी धार्मिक ग्रंथ थे उसे हम बोलते हैं रिलीजियस लिटरेचर. जैसे महाभारत हो गई, रामायण हो गई, पुराण, देन योर त्रैपिटिकास, पुराण्स, इन सबको हम बोलते हैं रिलीजियस लिटरेचर. सो इनसे जो ज्ञान मिलता है हमें, दैट इज अबाउट योर रिलीजन, and then about medicines, different medicines we have learned, and then economic and lifestyle of the people in those time, इस चीज के बारे में भी हमें पता चलता है. The next comes your secular literature, the literature that is not connected with any religion. ये secular literature किसी भी धर्म से connected नहीं होता है. It includes the account of foreign travelers, biographies of kings, and the books on politics and science. तो इसमें सेक्युलर लिटरेचर में क्या होता है, सेक्युलर लिटरेचर में जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे, जो फॉरेन पीपल जो इंडिया में आते थे उनकी बुक्स होती हैं, प्लस जो आत्मकथा बोलते हैं, बायोग्राफीज होती है राजाओं की, वो होती है, प्लस पॉलिटिकल साइंस पे कोई भी बुक लिखी जाती है दैट आर इंक्लूडेड अंडर द सेक्युलर लिटरेचर. फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइक मेगास्थनीज, हर्षचरित्रा एक्सेट्रा, ये कुछ बुक्स के नाम है जो सेक्युलर लिटरेचर के अंडर आती है. इंडिजीनियस सोर्स, these sources were created within the country, which chiefly includes manuscripts and chronicles. Chronicles were the records of the rules of kings and their kingdoms. Now indigenous sources भी इंडिया में ही
यानी कि इंडियन के लोगों द्वारा ही बनाए गए हैं। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं या फिर क्रॉनिकल्स होते हैं। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग क्रॉनिकल्स क्या होते हैं? क्रॉनिकल्स एक सच्ची घटनाएं होती है हिस्ट्री की, जिनको ऑर्डर में लिखा जाता है। ओके, क्रॉनिकल्स वो घटनाएं होती हैं हिस्ट्री की, सच्ची घटनाएं होती हैं हिस्ट्री की, जिन्हें ऑर्डर में लिखा जाता है। दे आर नोन एज क्रॉनिकल्स। और जो इनको लिखते हैं उनको बोलते हैं क्रॉनिकलर्स। क्रॉनिकलर्स। नाउ बार्ड्स, बार्ड्स मतलब जो प्रोफेशनल स्टोरी टेलर्स होते हैं ना, जो जैसे आपके स्टोरी राइटर एंड ऑल, दे वर नोन एज द बार्ड्स। उस टाइम पे हर एक राजा के कोर्ट में एक बार्ड होता था, स्टोरी टेलर होता था। दे यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ द किंग्स कोर्ट, थस गिविंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पीपल। तो ये जो बार्ड्स होते थे, क्रॉनिकल्स होते थे, हर एक राजा के कोर्ट में होते थे। और जो भी दरबार में, जो राजा के दरबार में जो भी प्रोसीडिंग्स होती थी, जो चर्चा होती थी, वो इन्हें रिकॉर्ड करते थे और इनका रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। Now there are few words which we have used in this chapter or in this topic, so you must know what they are. First is autobiography. Autobiography किसे कहते हैं? An account of a person's life written by that person. Autobiography means आत्मकथा, यानी कि आप अपनी ही लाइफ के बारे में अपने हाथों से लिखते हो। That is known as autobiography. Historiography means a study of writing of history and of written histories. जो हम जब हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं और या फिर स्टडी ऑफ हिस्ट्री, हाँ, स्टडी ऑफ द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री एंड ऑफ रिटन हिस्ट्रीज, जो लिखी हुई हिस्ट्रीज हैं या फिर जो स्टडी होती है हिस्ट्री की, दैट इज कॉल्ड एज द हिस्ट्रियोग्राफी। Next is biographies. Biographies is an account of someone's life written by someone. Now autography और biography दो different चीज है। Autography में जिसकी कहानी होती है वो खुद लिखता है, बायोग्राफी में आपकी कहानी कोई दूसरा लिखता है, दैट इज नोन एज द बायोग्राफी। नेक्स्ट, देयर आर सम बुक्स और या फिर ऑथर्स हैं, नेम बुक्स हैं जिनको लिखा गया है। लेट्स सी व्हाट वर द बुक्स इन दोस टाइम। फर्स्ट इज राजतरंगिणी। It was, the author was Kalhana and किस चीज के बारे में थी? A chronicle of the kings of Kashmir, जो कश्मीर के राजाओं की जो कहानियां हैं, सच्ची कहानियां हैं, उसके बारे में राजतरंगिणी में लिखा गया है। और किसने लिखा है? कल्हाना ने। Then शाहनामा, this book is written by फिरदौसी and ये हिस्टोग्राफी है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री है। Then तारिक ए फिरोज शाही, दिस इज रिटन बाय जियाउद्दीन बरानी। और ये हिस्ट्री जो दिल्ली सल्तनत की जो हिस्ट्री है उसके डिस्क्रिप्शन तारीख फिरोज शाही में बुक में लिखे गए हैं। तबाकत ई नसीरी, इट इज रिटन बाय मिनाज ई सिराज। इसमें किस चीज का डिस्क्रिप्शन है? जो मोहम्मद गजनी का, जो मोहम्मद गजनी से लेके बालबन का जो टाइम पीरियड था उसके बारे में तबाके ई नसीरी में लिखा गया है। अकबरनामा आईने अकबरी, इट इज रिटन बाय अफजुल फजल। और ये अकबर के बारे में लिखा गया है, अकबर के रूल के बारे में लिखा गया है, अकबर की लाइफ टाइम के बारे में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो, इट इज रिटन बाय चंद्र बरदाई। और इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ फेमस राजपूत जो हमारे पृथ्वीराज चौहान थे उनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। The next is, let's see about the foreign sources. As I told you, पहले जो हमने पढ़ा था they were like Indian sources, अब हम पढ़ेंगे foreign sources. On account of foreign, अभी जो मैंने books के नाम पढ़े, they were also like foreigners. Few of them were foreigners. But let's see few most important foreigners who have written the books. First one is Al-Biruni. He was a Persian traveler. एक पर्शियन ट्रैवलर थे वो जो इंडिया में आए और उन्होंने किसके बारे में लिखा? महमूद ऑफ गजनी 11th सेंचुरी में। इब्न बतूता, ये ट्रैवलर है मोरक्को से, who wrote about मोहम्मद बिन तुगलक's life. इब्न बतूता ने किसकी लाइफ के बारे में लिखा है? मोहम्मद बिन तुगलक। Niccolo di Conti, a Venetian traveler who gave comprehensive account of kingdom of Vijayanagara.
तो निकोलो डी कॉन्टी ने विजयनगर के जो एम्पायर थे, चोलास पांड्यास उस टाइम के पीरियड थे, कृष्ण देव राय, वी कैन से कृष्ण देव राय ने जो सबसे ज्यादा डेवलप किया था विजयनगर को, उसकी लाइफ टाइम के बारे में, उसके पीरियड किंगडम के बारे में निकोलो डी कॉन्टी ने लिखा है। मार्को पोलो, द इटालियन एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ द चाइनीज एम्परर कुबलाई खान। मार्को पोलो एक इटालियन एम्बेसडर है। एम्बेसडर मैंने बताया होगा जैसे किसी दूसरी कंट्री का मेंबर, किसी दूसरी कंट्री का एक मेंबर आपकी कंट्री में रहता है और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो दैट इज नोन एज द एम्बेसडर। तो एक चाइनीज एम्परर कुबलाई खान के कोर्ट में यानी कि उनके दरबार में रहता था, विजिटेड इन इंडिया एंड रोट एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन प्रेवलेंट इन साउथ इंडिया। जो साउथ इंडिया के कस्टम्स थे, कल्चर थे, उनके बारे में मार्को पोलो ने लिखा है। अब्दुल रज़ाक, a Persian traveler who visited India and stayed at the court of Zamorin at Calicut। जमोरिन एट कैलिकट, जो कलकत्ता में जमोरिन थे, उनके बारे में अब्दुल रज़ाक ने लिखा है। ओके, द नेक्स्ट इज Sir Thomas Roy, an ambassador of British King James I, stayed at the court of Mughal Emperor Jahangir। तो जहांगीर की कोर्ट के बारे में, जहांगीर के बारे में सर थॉमस रॉय ने लिखा है। डोरेट बारबोस एंड डोमिंगो पीस, these Portuguese travel, ये पुर्तगाली थे, पुर्तगाली ट्रैवलर्स थे, who wrote about the Vijayanagara Empire during the reign of Krishnadev Rai। So these were the few foreign travelers and who have played a prominent role in writing the history of India। So students, at least the table which is important, which the important books are mentioned, you should know and you should remember the points। So let's revise all the things once again. What are literary sources and how many parts it has been divided? So history of study is divided into two. The sources of history we get from two types, that is archaeological sources and the other one is literary sources. Today we are covering literary sources. So what are literary sources? All the written records of past are known as the literary sources। So and earlier manuscripts were written on Bhojpatra and palm leaves, और उनकी लैंग्वेज क्या होती थी? प्राकृत एंड संस्कृत। और वो स्क्रिप्ट कौन सी स्क्रिप्ट यूज करते थे? ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो अभी यूज में नहीं है। एंड जो लिटरेरी सोर्सेस है वो टू वे में डिवाइडेड है। वन इज इंडियन सोर्सेस, द अदर वन इज द फॉरेन सोर्सेस। इंडियन सोर्सेस को हम रिलीजियस लिटरेचर में भी डिवाइड कर सकते हैं, सेकुलर लिटरेचर में भी एंड इंडिजिनियस सोर्सेस में भी। रिलीजियस लिटरेचर में वो बुक्स आती हैं जो धर्म के बारे में या फिर आपकी मेडिसिन के बारे में, इनके बारे में, सोशियो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में जो बताती हैं, दे आर कॉल्ड एज द रिलीजियस लिटरेचर। और रिलीजियस लिटरेचर आर रिटन बाय द इंडियंस। ओके, सेक्युलर लिटरेचर में जो मतलब किसी धर्म से कनेक्टेड नहीं होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी रिलीजन, एंड इट इंक्लूड्स एन अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर। जो फॉरेन ट्रैवलर्स ने जो बुक लिखी है वो आती है सेक्युलर लिटरेचर के नीचे। इंडिजिनियस सोर्सेस में मतलब क्रॉनिकल्स होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है। क्रॉनिकल्स क्या होती है? एक सच्ची घटनाएं हिस्ट्री के बारे में, फैक्चुअल फैक्ट्स अबाउट द हिस्ट्री। बार्ड्स कौन होते हैं? जो प्रोफेशनल स्टोरी टेलर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं बार्ड्स। सो ये दोनों chronicles and bards used to record all the proceedings of the king's court and they gave valuable information about the administration of period। तीन important words that we have learned in this is autobiography, यानी कि आप अपनी कहानी खुद लिखते हो, that is called as autobiography। Historiography is the study of writings of history and of written histories। Next, biographies. Biography means the story of your life is written by someone else, and then we have seen a table in which different books are there, their authors are there, and what does the book contain? We have seen that. Then finally we have seen a few foreign people who have written about who have written or played an important role in the Indian history,
like Al-Biruni, Ibn Battuta, Niccolo di Conti, Marco Polo, Abdul Razak, Sir Thomas Roy, Dorothy Barbosa, and Domingo Pace. So all these people, they have contributed to the Indian history and have written the records which are still valuable for us in getting the information. So students, kindly go through the topic and make the notes of these content in your notebook. Tomorrow we'll be doing with the question answers of this chapter. Till then, thank you and have a nice day.